Hello and praise the Lord and shalom to everyone. I was just led to pray for some time in this midnight hour here in India. So I'm just online, and if any of you is watching and you need prayers, please feel free to comment and we'll pray for you. So, we are living in perilous times, and we read in the Bible that so many prophecies are coming true. Yeshua is going to come soon. प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं और प्रभु यीशु ही मार्ग सत्य जीवन हैं, जीवन की ज्योति हैं, जगत की ज्योति हैं. He is the light of the world. Christ is the light of the world. He is coming soon. And without Christ, we cannot have forgiveness of sins. पापों की माफ़ी केवल प्रभु यीशु में है. सो और ये वक्त है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिता सकें. और अक्सर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं. इवन जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, सबकी लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं. There are so many challenges in the lives of Christian pastors and leaders, so it is good to edify, to be in fellowship with one another, bear one another's burdens, encourage one another, uplift one another, and demonstrate Christian love in faith as well as in deeds. So what a blessed time we have when we sit in the presence of God. And God is a good God. He is a worthy God. Yes, there are trials and tribulations. God says in His word that in this world you will have trials, you will have tribulations. I'm just paraphrasing. But Jesus says, be of good cheer, for I have overcome the world. So today, I'm being led to just send a word of encouragement in the name of Jesus. And I wish to comfort you with the comfort that we receive from God, that there is nothing impossible for God. The God who raised Lazarus from the dead, the God who defeated death, जिस परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया मुर्दों में से 4 दिन के बाद, जो मृतकों में से जी उठा परमेश्वर, जिसने मौत को हराया, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. यीशु मसीह के नाम में हम सामर्थी हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं. In the name of Christ we are more than conquerors. We can do all things through Christ who strengthens us. यीशु मसीह में होके हम सब कुछ कर सकते हैं. हम अपनी प्रॉब्लम्स में प्रभु यीशु को जब याद करते हैं तो प्रभु हमें बल देते हैं, प्रभु हमें शक्ति देते हैं. ये मैंने आज एक वीडियो बनाया था, अपने YouTube चैनल होप ऑफ इटर्नल लाइफ पे अपलोड किया था. उसमें भी कुछ ऐसी बातें शेयर की गई थी. तो दोस्तों, अब ये टाइम है, दिस इज़ अ टाइम ऑफ इंटेंस प्रेयर. We just need to come and sit at His feet in prayer. So let's just spend some minutes in prayer. Heavenly Father, we come to you in the name of Lord Yeshua. Lord, we give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you thanks. You are the Alpha. You are the Omega, you are the beginning, you are the end. Lord, you created the heavens and the earth. You stretch out heavens like curtains. Earth is your footstool, heaven is your throne, Lord. There is none like you, and only to you, Lord, belongs power, majesty, honor, praise, and glory. Thou alone art worthy of praise. Hallelujah. Lord, we lift your name on high. Hallelujah. Yes, Father God. Father, I pray that let your Holy Spirit touch
anyone who is watching this live broadcast, or even if they watch the recording later on. Let your Holy Spirit touch them from head to toe. Revive them, Lord. Convict them, Father God. If there is anything wrong in the life of anyone, convict me also, Lord. Correct me also where I am wrong, Lord. Father God, give us genuine repentance for our sins, Lord. We confess our sins before you, Father. Forgive us, Lord, for all the sins we have committed knowingly and unknowingly. 1 John 9. If we confess our sins, you are just and kind to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. Proverbs 28:13. Whoever hides his sins doesn't prosper, but whoever confesses and forsakes them finds mercy from the Lord. Yes, Father God, please continue to transform us in your image as you are sanctifying us daily. Help us, Lord, to reflect Christ from our lives. प्रभु यीशु जी, हमारी ज़िंदगी से आपकी झलक नज़र आए। हमारे गुनाहों की माफ़ी हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु जी। आप माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगे परमेश्वर हैं, आप लॉन्ग सफरिंग परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमको अपना अनुग्रह दीजिए। गिव अस द ग्रेस लॉर्ड, सो दैट वी वॉक इन ओबीडियंस टू योर कमांड्स। और प्रभु जी, हम जब कमज़ोर होते हैं तो हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस लिखते हैं दैट व्हेन आई एम स्ट्रॉन्ग, व्हेन आई एम वीक, देन आई एम स्ट्रॉन्ग। जब मैं कमज़ोर होता हूँ, प्रेरित पौलुस कहते हैं, तब मैं बलवंत हूँ। कैसे बलवंत हैं? यीशु मसीह के नाम में बलवंत हैं। सो यीशु मसीह के नाम में हमें सामर्थ मिलती है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा हमें बल देता है। And all that is possible only in Jesus Christ. दोस्तों, प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई अपने पापों में मरे। प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपनी जान दी ताकि मैं और आप उद्धार पा सकें। God gave his life on the cross. Jesus gave his life on the cross so that you and I may not perish but have eternal life. You know, when we leave this world, there is eternity with Christ. Oh, what a wonderful promise that God has given us. And if today, आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, मेरे भाई मेरी बहनों, आप प्रभु यीशु के आगे आप अपनी दुआ को रखो। आप अरदास करते हैं परमेश्वर के आगे, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपका दिल देखते हैं, परमेश्वर आपका दिल जानते हैं। आप परमेश्वर प्रभु यीशु के आगे अपना दिल खोल के रखिए। मैं नहीं जानता जो मुझे देख रहे हैं वो किस मुसीबत में हैं या किस ट्रायल्स में हैं। मैं भी कितने सारे ट्रायल्स में, परेशानियों में से होके गुजर रहा हूँ। अगर मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मेरी लाइफ परफेक्ट है, परंतु हमें केवल प्रभु की ओर देखना है। हमें एक दूसरे को इंकरेज करना है और अपनी ज़िंदगियों में एक बदलाव लेके आना है। दोस्तों, जब आप प्रभु यीशु को अपने दिल में सच्चे दिल से बुलाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु यीशु जी, आप मेरे दिल में आइए, मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए, मेरे पापों को माफ़ कीजिए, आप मेरे पापों के लिए सलीब पे मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आप मुझे अपनी शांति से भरिए। और दोस्तों, आप देखना, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी के सारे स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे या जो मांगोगे परमेश्वर से मिल जाएगा। मिलता है। प्रभु यीशु चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आप उनसे मांगिए, वो आपके अब्बा पिता हैं। बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, कोड़ियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। कितने सारे रोगी प्रभु यीशु ने चंगे किए थे। हम जब क्रिश्चियन भाई बहन जब जो विश्वास करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। परंतु ये परमेश्वर के हाथ में है।
हम अपने में होके कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप प्लीज़, अगर आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर में मैसेज कर दीजिए, आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर आपको, आपके घराने को, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। दोस्तों, अपना कभी भी हौसला ना खोइए, इस संसार की चकाचौंध में गुम मत होइए। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, हमेशा उसका शुक्राना करते रहिए। एक दिन इस संसार को छोड़ के सब ने जाना है। मेरा जन्म भी एक सिख परिवार में हुआ था और मेरे अंदर एक तलाश थी कि प्रभु, कि वो सच्चा प्रभु कौन है, मरने के बाद क्या होगा। मैं जब 7 साल का था तो मैं पूछा करता था अपने मम्मी पापा से, मरने के बाद क्या होगा, परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, परमेश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ। परंतु जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो प्रभु ने जवाब दिया कि मरने के बाद आप मेरे साथ जीवन बिताओगे अगर आप मुझ में विश्वास करते हैं। दोस्तों, बाइबल बताती है कि हम एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार हम मरते हैं, उसके बाद न्याय होता है। सो आइए, अगर आप में से कोई मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहता है, आइए हम दुआ करते हैं। आज मैं नहीं जानता आपके मन में, आपके दिल में क्या बोझ हैं। आई डोंट नो व्हाट आर योर बर्डन्स, परंतु प्रभु जानते हैं, परमेश्वर आपका दिल जानते हैं। और इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उनको आपका ख्याल है। आइए हम, और प्रभु अपनी वाणी में कहते हैं, ए बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति के राजकुमार है। आइए असी थोड़ी देर दुआ कर दें, अरदास कर दें सतगुरु यीशु दे के। आपकी जो भी जो मनोकामनाएं हैं आप अपने मन में रखिए। आप परमेश्वर से हम जुड़ते हैं और विश्वास कीजिए कि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनते हैं। प्रभु परमेश्वर जी, मैं इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे जितने भाई बहन प्रभु जी इस समय देख रहे हैं, प्रभु जी मैं उनको आपके सिंहासन के सम्मुख लेके आता हूँ। मैं तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर जी, मैं इन सब भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ। मैं अपने दिल से प्रभु जी दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इन सब की मुरादें पूरी करो पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी, जो जिसके दिल में है पिता परमेश्वर जी, आप उसको दे दीजिए अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय यदि कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, प्रभु जी आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कोड़ियों को शुद्ध किया है, आपने अंधों को आंखें दी हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उसने केवल आपका दामन छुआ और वो चंगी हो गई। जिसके कान नहीं थे, आपने उसको कान दिया। लकवे के रोगी को आपने चंगा किया। सो प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, इस समय अगर कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी है, तो प्रभु का आत्मा उसको छू जाए और सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, यस लॉर्ड। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, अपने लोगों को छू लीजिए इसी समय पिता परमेश्वर। हर एक डॉक्टरों की रिपोर्ट को हम प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप दवाइयाँ मत खाइए, डॉक्टरों पे भरोसा मत कीजिए, परंतु अपना भरोसा उस परमेश्वर पे लगाइए। डॉक्टर अपना काम करते हैं, परंतु जो हीलिंग है वो परमेश्वर की ओर से आती है। गॉड इज़ द हीलर। सो प्रभु जी, अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो आप उनकी चिंताओं को मैं आपके सामने दे देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जी, आप शांति के परमेश्वर हैं। अपनी शांति से मेरे भाई बहनों को भर दो जो इस समय देख रहे हैं। प्रभु यीशु अपनी वाणी में कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मन ना घबराए। प्रभु यीशु की शांति को आपके ऊपर बोलता हूँ। और अगर आप में से किसी को भी कोई टच फील हो रहा है, कोई परमेश्वर की शांति महसूस हो रही है, आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर किसी ना किसी को छू रहा है। अगर परमेश्वर ने उभारा है इस समय प्रार्थना करने के लिए, तो किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रभु जी, अगर किसी के बच्चों को प्रार्थना की ज़रूरत है, आप मैं उनके बच्चों को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी, घर में रिश्ते नाते में प्रभु जी हम सुख बोलते हैं प्रभु जी, हम पीस बोलते हैं प्रभु जी। जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, आप उनके बच्चों को अच्छा करियर दीजिए, उनकी प्रोटेक्शन कीजिए पिता परमेश्वर जी। उनके घरों को, उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए पिता परमेश्वर जी। हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु जी। हालेलुया। आपकी कृपा, आपकी बरकत, आपका प्रेम, आपकी शांति सब देखने वालों के, उनके परिवार के जनों पे हमेशा बना रहे। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको छुआ है। आप भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। कि सतगुरु यीशु, ये मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है, आप मेरी दुआ को कबूल कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। और मैं आपको फिर से इंकरेज करना चाहता हूँ, आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, आप केवल प्रभु को देखते रहिए, आप प्रभु की ओर निहारते रहिए, कभी भी हौसला ना छोड़िए। आजकल के टाइम ऐसे हैं, हर एक के ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर्स हैं, परंतु अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो आपकी जो कश्ती है ना, जीवन की कश्ती, वो हिचकोले जरूर खाएगी पर डूबेगी नहीं। और अगर आप कोई ख़ास विषय है जिसको शेयर आप पब्लिकली नहीं कर सकते, आप प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी आपके लिए दुआ करके। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, होप ऑफ इटर्नल लाइफ, जिस पे हम वीडियोस डालते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि। प्रभु आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे और आपके जीवन में ढेर सारी प्रभु खुशियाँ लेके आए। यीशु के नाम में आप सबको सलाम और गुड बाय।